Good morning, students. How are you? I hope all of you are well. Today, we have to discuss about the next topic, that is determinates. Determinates is a part of matrices. First of all, we have to discuss about this, why we use this determinates. Do you know about Bermuda Triangle? Bermuda Triangle is a large triangular region in the Atlantic Ocean. Many ships and aeroplanes have been lost in this region. The triangular region is formed by imaginary lines connecting Bermuda, Puerto Rico, and Miami, Florida, and use determinate to estimate the area of Bermuda Triangle. This is the Bermuda Triangle. We have to suppose that is on the coordinate plane. Miami, whose coordinates are 00, Bermuda, that is 938, 454, and Puerto Rico, that means whose coordinates are 900 and minus 518. And now we have to find the area of this triangle by using determinates. That means area, that is plus minus half, and we have to write the coordinates like this way: 938, 444, 1, 900 minus 518, 1, 001, and find its calculations. We get the area of Bermuda Triangle is about this 4,40,000 square miles. And here we have to discuss how the values of determinate we have to find. That means how we have to solve this determinate. So determinates have wide applications in engineering, science, economics, social science, etc. And now determinate. Every square matrix has associated with its a scalar. Call its determinate. That means determinates we can find of a square matrix. If we have given a matrix A, then det A, that is the determinant of A, and either we have to write in this form two vertical lines with A. That means that is the determinant of A. We have to represent it by this. For example, we have A is equal to A is a matrix 2 1 0 3. Then determinant of A is equal to, we have to write it within a straight lines. Here matrices we have to represent it by a square bracket, while the determinant is represented by vertical straight lines. That means we have to replace this bracket into vertical straight lines. And determinant of a 1 cross 1 square matrix, that means A, that is equal to A. Okay, and determinant of 2 cross 2 matrix. 2 cross 2 matrix, suppose we have the matrix is ABCD, then its value is AD minus BC. That is the value of determinant of 2 cross 2 matrix. And for higher order matrices, we will use a recursive procedure to compute the determinants. And now finding determinants of the matrices. And now here we have to write the values 3 2 minus 5 4. We have to see the lines where we have to multiply. That is equal to, first of all we have to multiply 3 into 4, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 4 को, and then we have to multiply this minus 5 and 2. Minus 5 and 2, that means it is equal to
minus 5 into 2, that means minus 12. That means we have 12 minus of minus 10, it becomes 22. That is the answer. That is the value of determinant of order 2. यानी कि हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जो पिंक लाइन है पहले उसको मल्टीप्लाई करना है और जो येलो लाइन है उसको बाद में मल्टीप्लाई करना है। जब हम ये अपवर्ड डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं तो हम एक नेगेटिव साइन बीच में पुट करते हैं, ओके। एंड नाउ we have to find the determinant of this. That means the determinant of order 3, 203, 1 minus 2, 5, minus 1, 4, 2. We have to write again this first column 2, 1, minus 1 and second column 0, minus 2, 4 in this space here. And now we have to multiply the yellow lines 2 minus 2, 2. 0, 5 minus 1 and 3, 1, 4 and write these values with plus sign. And now we have to subtract the multiplication of these numbers lined with pink line, that is minus 1, minus 2, 3, 4, 5 and 2 and 2, 1 and 0. इनके साइन को, लाइंस को ध्यान से ऑब्जर्व करना। जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पहले येलो लाइंस है उनको हमें सबको प्लस करना है और जो पिंक लाइन से मल्टीप्लाई किए हैं नंबर्स उनको हमें माइनस करना है, ठीक है। और इनकी मल्टीप्लिकेशन का जो मल्टीप्लाई करके हम ऐड करते हैं एंड वी गेट दिस minus 8, 0, 12 and minus of 6, 40 and plus 0 and simplify this, we get 4 minus 6 minus 40, that is equal to minus 42. That is the value of the determinant. And now we have to discuss the minors. The value minor is the determinant of any square submatrix of A. यानी कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है जिसके एलिमेंट्स -1, 4, 2, 3 हैं, तो माइनर ऑफ ईच एलिमेंट वी कैन फाइंड माइनर ऑफ A11, यानी कि ये जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है A11, इसका माइनर को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल M11 एंड दैट मीन्स कैन बी obtained by this. Delete this first row, first column, that is the remaining element is 3 and minor of this A12 is 4 and now delete this first row and second column, its value is 2. Minor of A21 यानी कि delete this second row first column, its value is 4 and minor of this A22 जो इनकी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंगली हमें रो और कॉलम को डिलीट करना है, that is equal to -1. And now minor of order 3, that means minor of order 3, that means minor of A11. Determinant of 2 cross 2 matrices submatrix is obtained by leaving first row and first column of the A. सेम यहाँ पर हम करते हैं कि अगर ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, यानी कि इसको आप छुपा दीजिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को। जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं 0, 0, 3, 4, इसका हम डिटर्मिनेट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेट यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 0, दैट इज इक्वल टू 0. Similarly, if we have to find the minor of 2, 3 यानी कि 2, 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यानी कि ये एलिमेंट है, इसका हमने माइनर फाइंड करना है, तो इसके लिए हमने सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट किया। अब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट किया तो हमारे पास एलिमेंट्स रह गए 4, 7, 2, 3। इसका हम डिटर्मिनेट फाइंड कर रहे हैं, दैट मीन्स 12 minus 14,
that is equal to -2. Is it clear? यानी कि किसी भी रो का, किसी भी एलिमेंट का हमने अगर माइनर फाइंड करना है तो उस रो और उस कॉलम को हम डिलीट कर देंगे। अब जैसे हमने M32 का लेना है, M32 यानी कि थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट है, तो थर्ड रो को डिलीट करेंगे और सेकेंड कॉलम को डिलीट करेंगे, तो हमारे पास डिटरमिनेट हो जाएगा 4 8 -9 0। तो हमने इसको यहाँ पर लिख लिया है 4 8 -9 0। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 माइनस ऑफ -72, it becomes +72, that means that's value is 72। इसी तरह से हम सभी एलिमेंट्स का माइनर फाइंड कर सकते हैं। एंड नाउ वी हैव द कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या है? ये माइनर से रिलेट करते हैं। कोफैक्टर दैट यानी कि मैट्रिक्स AIG, द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इज द स्केलर। ये भी क्या है? एक स्केलर है। ये हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? ये जो यानी कि एक टर्म को -1 रेज टू द पावर I प्लस जे, I प्लस जे क्या है? एलिमेंट की पोजीशन है, और उस एलिमेंट की -1 रेज टू द पावर I प्लस जे को हम उसके माइनर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, माइनर कैसे ऑब्टेन करते हैं? बाय रिमूविंग ith रो एंड jth कॉलम। यानी कि कोफैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Cij, दैट इज Cij इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर I प्लस जे Mij। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि ये हमारे पास मैट्रिक्स है, जनरल मैट्रिक्स लिखा है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। यानी कि अगर माइनर A21 फाइंड करना है, 21 यानी कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया तो एलिमेंट हो गए A12 A13 A32 A33। और M22 अगर हमने फाइंड करना है तो 22 ये एलिमेंट है, इसलिए सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट किया, वी गेट दिस A11 A13 A31 A33। अब इनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो ठीक है, जो कोफैक्टर्स होंगे, जैसे M21 हमने फाइंड कर लिया, अब हमने C21 फाइंड करना है, इसी एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? -1 की पावर को 2 + 1, ये 2 1 है ना, इसके सबस्क्रिप्ट में 2 1 है, तो इसके सबस्क्रिप्ट का सम उसको हमने -1 की पावर में लेना है और साथ में M21 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा -1 रेज टू द पावर 3, तो नेगेटिव नंबर आएगा, तो इट मीन्स -M21। ओके, और C22 के लिए हम क्या करेंगे? -1 रेज टू द पावर 2 + 2 इंटू M22। ठीक है, तो अब यहाँ पे -1 रेज टू द पावर 4 इवन नंबर है, इसलिए पॉजिटिव साइन आ गया, दैट इज M22। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एंड नाउ वी हैव टू टेक द एग्जांपल। द मैट्रिक्स इज 4 7 8 9 -9 0 0 2 3 4। यानी कि अगर हमने C11 फाइंड करना है, फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना है, तो हमने क्या किया? -1 रेज टू द पावर 1 + 1 इंटू M11, -1 रेज टू द पावर 1 + 1, दैट मीन्स 2। अब ये M11 यानी कि डायरेक्ट हम M11 फाइंड कर रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया, द एलिमेंट्स इज 0 0 3 4, दैट इज इक्वल टू 0। ओके, अब C23 को फाइंड किया, C23 यानी कि सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट ये वाला है। ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? -1 रेज टू द पावर 2 + 3 इंटू M23। अब M23 के लिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट किया, यानी कि 4 7 2 3 का डिटर्मिनेंट बाहर क्या होगा? माइनस साइन होगा। ठीक है, तो ये 12 -14, तो -2 आएगा, बाहर नेगेटिव साइन था, इसकी वजह से हमारे पास 2 आ गया। सेम इसी तरह से A32 हम फाइंड कर सकते हैं। A32 कोफैक्टर ऑफ A23, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं
32 से या C32 से या कैपिटल A32 से डिनोट करते हैं। तो -1 रेज टू द पावर 3 + 2 इंटू M32। ओके, अब ये M32 फाइंड करने के लिए 32 ये एलिमेंट है ना, थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट, तो ये थर्ड रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करके बाकी जो मैट्रिक्स बनता है उसका डिटरमिनेट 4 8 -9 0, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास -72। यानी कि जितने भी ये एलिमेंट्स हैं उन सब का हम कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम और फाइंड करेंगे। अब हम जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है माइनर्स और कोफैक्टर्स की हेल्प से फाइंड करते हैं। ये इजी मेथड है माइनर और कोफैक्टर्स की हेल्प से। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स लिखा है, जनरल मैट्रिक्स लिखा हुआ है, एंड देन डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ये हमारे पास क्या है, j = 1 2 3 -1 i + j aij mij। aij यानी कि उस एलिमेंट, उस मैट्रिक्स का वो एलिमेंट और उसका कोफैक्टर। इसको फाइंड करने के लिए हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हम जो भी रो या जो भी कॉलम कंसीडर कर रहे हैं उसी एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और प्लस करना है। ओके, जैसे आई जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रोज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और जो जे होता है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। AI1 CI1, AI2 CI2, AI3 CI3। ओके, यानी कि टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ आर्बिट्ररी ऑर्डर पिक एनी रो और एनी कॉलम। आप कोई भी रो और कोई भी कॉलम ले सकते हो। ठीक है, फिर उस रो और कॉलम के जो हमने चूज किए हैं उसके एलिमेंट का हम कोफैक्टर फाइंड करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उस एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका हम ऐड करेंगे। ठीक है, और जो ऐड होगा, एडिशन होगा, दैट गिव्स द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। यानी कि अगर हमने AIJ CIJ लिया है, तो अगर हम ith रो से ले रहे हैं तो AI1 CI1, AI2 CI2 प्लस AIM CIN। ठीक है, ये भी किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। ठीक है, n अगर 3 ऑर्डर का होता तो 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे, अगर ये 2 ऑर्डर का है तो ओनली 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, और जब हम कॉलम से लेते हैं, कोई भी कॉलम ले सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, समेशन i = 1 to n aij cij a1j c1j। यहाँ पे j की पोजीशन चेंज हो रही है, a1j c1j a2j c2j एंड anj cnj। Is it clear? Up we have to find the value of determinant by expanding this first row। फर्स्ट रो में एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3। ठीक है, हम इसका जो है वो भी फाइंड करेंगे माइनर। तो हमने क्या किया, सिंपल क्या लिखा, -1, ये 1 क्या है, ये एलिमेंट गिवन था। ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, और ये -1 रेज टू द पावर 1 + 1 जो इसकी पोजीशन के सुफिक्सेस है उनका हमने ऐड किया, और उसके बाद ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके ये जो सब मैट्रिक्स बना 5 6 8 9 इसको हमने कंसीडर किया है, प्लस अब ये जो सेकंड एलिमेंट है फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट क्या है, 2, तो ये 2 इंटू -1 रेज टू द पावर 1 + 2। अब सेकेंड एलिमेंट है तो इसलिए सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो को डिलीट करके जो मैट्रिक्स बनेगा 4 6 7 9 उसको कंसीडर किया। ठीक है, प्लस 3 थर्ड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, और 3 इंटू -1 रेज टू द पावर 1 + 3 इसको डिलीट कर दीजिए। द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड दैट इज 4 5 7 8 एंड इट्स डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट तो हमने कैसे फाइंड करना है सेकंड ऑर्डर का, ये आपको पता ही है कि यानी कि पहले 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 45
-48। ठीक है, और बाहर इसका क्या है, -1 रेज टू द पावर 2, यानी कि पॉजिटिव साइन आएगा, इट बिकम्स -3 प्लस 2 इंटू -2, क्योंकि यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि ये ओड पावर है, तो -2 इंटू ये 4 इंटू 9 36 -42, ठीक है, एंड देन इट बिकम्स +12 एंड देन -3, ओके, और ये 4 इंटू 8 32 -35, ठीक है, नेगेटिव साइन यानी कि -9, we get this and simplify this, we get 0। और एक्सपेंड डाउन द सेकेंड कॉलम, हम सेकेंड कॉलम से भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, थर्ड कॉलम से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। अब सेकेंड कॉलम से देखिए कैसे करना है, ये सेकेंड कॉलम है, ठीक है, सेकेंड कॉलम है 258, यानी कि 2 लिया पहले, सबसे पहले इसकी पोजीशन क्या है 1 + 2, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है 1 + 2, और डिटरमिनेंट क्या है 4 6 7 9, ये देखिए यहाँ पर वही लिखा है, प्लस second element of second column, that is 5 into -1 raised to the power 2 + 2, ठीक है। अब इसको डिलीट कर दीजिए, सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो को, मैट्रिक्स बनेगा 1 3 7 9, तो उसका डिटरमिनेंट लिया, ओके, प्लस 8 क्या है, सेकेंड कॉलम का थर्ड एलिमेंट मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के अंदर देखिए हमने वो लिया है, और -1 रेज टू द पावर 3 + 2, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है 3 2, इसलिए -1 रेज टू द पावर 3 + 2, और मैट्रिक्स क्या बनेगा, इस सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को डिलीट किया, वी गेट 1 3 4 6, ओके, एंड देन सिंप्लीफाई दिस, ठीक है, 36 -42 इंटू -2, ठीक है, 12 and then -60 plus 48, that gives the value। अब आपने फर्स्ट रो से देखा तब भी 0 आया था, सेकेंड कॉलम से किया तब भी हमारे पास इसकी वैल्यू 0 आएगी, तो हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है। और हम कोशिश क्या करते हैं कि इसके अंदर जितने मैक्सिमम जीरोस होंगे हम उसी से उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी कि जीरोस और कॉलम। अब जैसे इसके अंदर है एग्जांपल 2 में देखिए 1 5 0 2 1 1 एंड 3 -1 0। अब थर्ड कॉलम के अंदर क्या है, मैक्सिमम जीरोस है, ठीक है, तो हम इससे एक्सपेंड करेंगे, और ये सिर्फ हमारे पास एक यही एलिमेंट है 1, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट 0 है, क्योंकि 0 से किसी भी डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, तो सेकेंड एलिमेंट क्या है 1। अब इसकी पोजीशन क्या है -1 रेज टू द पावर 2 + 3, तो इसलिए अब इसी रो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट किया, वी गेट 1 5 3 -1, तो और इसको एक्सपेंड कर दीजिए, वी गेट 16, दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। मैक्सिमम जीरोस किसी भी रो या कॉलम में मैक्सिमम 0 होने का ये फायदा होता है, क्योंकि वो सारे एलिमेंट्स 0 बन जाते हैं, सिर्फ हम उसी एलिमेंट को लेते हैं जो 0 नहीं है, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, थैंक्स। इसी से रिलेटेड जो है ना एक्सरसाइज करनी है, जो मैंने आपको PDF सेंड की थी। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।